अगर आपको इस साइड जाना है तो इस टाइप की स्किल्स डेवलप करो, ये करना है तो वाली, मतलब कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांटेड टू डू, बट अच्छे से करो जो भी चीज कर रहे हो, कंपनीज आपको अल्टीमेटली ढूंढ लेंगी, ये वाला सिनेरियो। Hello everyone, welcome to Tech with Mukul Code. Today we have another great guest who have cracked an internship at Grow. आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर इंटर्नशिप के बारे में, सिर्फ इंटर्नशिप के लिए क्या से देखी जाती हैं चीजें, कैसे होती हैं, ग्रो कैसी कंपनी है काम करने के लिए, अगर आपको स्टार्टअप्स टारगेट करने हैं तब आपको क्या क्या आना चाहिए, किस तरीके की स्किल से क्या कुछ होता है। एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड अबाउट आवर गेस्ट, दैट ही इज नॉट फ्रॉम अ वेरी बिग कॉलेज जहां पर आपको हर महीने हर सीजन में आपको 300 कंपनी आ रही हैं उसमें से आपको इंटर्नशिप मिले। ही हैज डन अ लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स, आई हैव सीन हिम पर्सनली ग्रोइंग a lot. I think that is enough build up for him. Today we have my junior, one of the best person in my college, to be honest. His name is Tushar and he is currently working at Grow. Let's hear about his introduction from his words only. Yeah, शुरू करते हैं तुषार, आपके एक बढ़िया से इंट्रोडक्शन जिससे ऑडियंस को हाँ आइडिया मिल सके आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पर, किस कॉलेज से पढ़ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें आपने अचीव की हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाय एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर मुकुल भैया मुझे इस चैनल पे लाने के लिए। इन्होंने बहुत बिल्डअप कर दिया है बट फॉर द वेरी स्टार्ट आई वुड लाइक टू से कि जब हम कॉलेज में आए थे सो वन ऑफ द फ्यू पर्सन्स जिनको हम देख करके सीख रहे थे कि क्या कैसे करना है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू द सिमिलर फील्ड विच ही इज़ डूइंग राइट नाउ। तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिली एंड लाइक स्टेप बाय स्टेप इन सपोर्ट में रह रहे हैं। इनफैक्ट लाइक ग्रेजुएट हो चुके हैं कॉलेज से बट अभी भी आई जस्ट कीप ऑन पिंगिंग हिम ओवर व्हाट्सएप की भैया इस चीज़ में थोड़ी हेल्प कर दो, कुछ गाइडेंस दे दो, कुछ टिप्स दे दो। सो आई लव टू सी दैट ही इज डूइंग इट इन सच अ बिग स्केल ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच मुकुल भैया once again for having me here. Now talking about myself, as Mukul bhai introduced, I am Tushar Ojha. So I used to love building products by learning new technology. So I call myself as an open source and tech enthusiast. So I started to code at an early age from basic C, C++, Java, Foxpro, which were languages at that time from my father's book. But after that, once I got into like JEE preparation and also there was a big struggle in that. But as soon as I get into the college, I focused more on skill development and learning skills. So right now I'm interning at Grow, which is a unicorn startup, and it has more than 3 billion valuation right now. And I'm working as a React Native intern. So I'm working on their mobile applications for Android as well as on iOS. My skill sets basically include Flutter, React Native, MERN-Stack, a few other technologies which I am learning right now. As of now, I'm learning about blockchain. So yeah. That's kind of a very good introduction. Couple of takeaways जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तुषार is kind of a person who is more into building stuff, who likes to learn technologies, new things, नई नई चीजें सीख रहे हैं और उन्हें यूज कर रहे हैं एक्चुअली कुछ बिल्ड करने में। ऐसा नहीं है कि यार खुद कुछ यूट्यूब वीडियो से देख के प्रोजेक्ट बना दिया या ऐसे कुछ कर दिया या कुछ बेसिक सी चीज बना दी। तुषार into developing great stuff and I have seen his work personally from my naked eyes. और एक और चीज, तुषार loves to share things as well. So if you search तुषार ओझा Flutter, अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको तुषार के ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड पर्सनली आई फील लाइक whenever you are learning something, when you try to teach that thing, you are basically improving yourself and giving back to the community. So that's another great thing Tushar is doing. I hope he'll upload more stuff over there and create some more strategic things over there related to Flutter and whatever he is learning and working on. So talking about Grow, let's talk about more about Grow, जो हमारा पूरा फोकस होने वाला है इस कन्वर्सेशन के अंदर। तो ग्रो, अगर आपने ग्रो के बारे में नहीं सुना है तो यार ग्रो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, जबरदस्त। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अगर अभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जॉब मिलने के बाद तो आप इन्वेस्ट कर ही रहोगे उस ऐप पर। तो यार बात करते हैं ग्रो के बारे में कि यार ग्रो का कल्चर कैसा है और उसकी अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको। मैं पर्सनली जानता हूँ कि यार ठीक है, टियर 3 वाले बंदे जॉब निकाल रहे हैं आजकल, बहुत सही चीज है। अल्टीमेटली अभी भी जो चीज है ना यार, वहां पर इंटर्नशिप वाले एरिया पे बहुत गड़बड़ है। अगर हम देखें टियर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इंटर्नशिप मिलने में ज्यादा डिफिकल्टीज फेस होती हैं एज कम्पेयर टू फुल टाइम जॉब। क्योंकि फुल टाइम में ऑफ कैंपस बहुत हायरिंग हो रही होती है, बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन इंटर्न्स के लिए कंपनीज अभी भी टियर 3 स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं कर रही हैं या फिर कंसीडर नहीं कर रही। तो आप अगर उस बारे में शेयर कर सके कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, क्या प्रोसेस थी, किस तरीके से आपने उन्हें अप्रोच किया। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पहले काम के बारे में बात कर लेता हूँ मैं, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। ग्रो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप इंडिया का, उसका मतलब है कि हर वो स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा पहुँच चुकी है। ग्रो की $3 बिलियन है। वो काम क्या करती है बेसिकली, अगर आप अपने 20s में हैं और आप 20s के बाद से जॉब लग के आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है।
इट्स बेसिकली फ्लिपकार्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स। आप हर तरीके के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एफडी अभी नया फीचर डाला है ग्रो ऐप में, और भी बहुत सारे आने वाले हैं जो कि इस वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन एज आई सी दोज थिंग्स राइट नाउ, तो मेरे को ये समझ में आता है कि वो बहुत ही अच्छा चीज होने वाली है। उसके अलावा कंपनी कल्चर एंड वैल्यूज की अगर मैं बात करूँ तो इट्स वन ऑफ दोज कंपनी जहाँ पे जैसे ही मेरे को पता चला कि आई विल बी एबल टू वर्क देयर, आई हैड नो अदर प्रायोरिटीज देन दैट। कंपनी का वर्क कल्चर काफी सिंपल है, जैसे मैं अभी आपसे यहाँ पे कॉल के अंदर मुकुल भैया से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इन अ वेरी सेम मैनर मैं अपनी सारी कॉल्स भी लेता हूँ, चाहे वो स्टैंड अप कॉल्स हो या कोई और भी कॉल्स हो। कोई भी फॉर्मल लेयर नहीं है बीच में, आपके एम्प्लॉयज और आपके फ्रेंड्स के बीच में, मेंटर्स के बीच में, मैनेजर्स के बीच में, काफी अच्छा रहता है। एंड द होल फोकस इज ऑन द कस्टमर्स, व्हाट दे से, हाउ वी इम्प्रूव ऑन दैट एंड हाउ वी कैन बिल्ड अ बेटर प्रोडक्ट। इवन समटाइम्स हम गूगल प्ले स्टोर पे जो आप रिव्यूज लिखते हैं, कई लोग कुछ भी लिख रहे हैं, वो सब चीजें भी हम 1 स्टार रेटिंग्स वाले भी पढ़ते हैं ड्यूरिंग अ स्टैंड अप कॉल्स, बिकॉज वी हैव लाइक दिस कस्टमर ऑब्सेशन थिंग एट ग्रो। नाउ टॉकिंग अबाउट हाउ आई गॉट दिस इंटर्नशिप, ऑनेस्टली आई डोंट नो। बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी है मेरी इंटर्नशिप मिलने में, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि हाउ डिड आई गेट द इंटर्नशिप एट द वेरी फर्स्ट टाइम। सो एज एनीवन एल्स आई वाज आल्सो स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड इंटर्नशिप। तो व्हाट आई मीन बाय गुड इंटर्नशिप इज दैट सम कंपनी जिसका अगर आपको नाम बताया जाए तो आप पता लगा कि अच्छा इस कंपनी में काम करे और यू शुड बी one of the user of that any product of that company. So I've worked at tons of startups and I love to work at startups because वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें rather than just building the tech you get to learn. मैंने internships की थी अपने first second years के अंदर भी, but those were very early startup जिन्होंने शायद अब तक कोई round भी raise नहीं किया, they are investing their own money. Grow के लिए मैंने specifically कहीं पे भी apply नहीं किया. I did not fill any form, I did not apply to their portal, I was just a normal Grow user. So हुआ ऐसा कि as I love to building new things and like कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करते रहना है, हाथ पैर मारते रहना है। सो मैं ऐसे ही बहुत सारे हैकेथन्स में जाता रहता हूँ, लाइक आई लव हैकेथन्स, क्योंकि उनमें ऐसा है कि आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको जबरदस्त नेटवर्किंग होगी। सिर्फ आप वहाँ पे बैठ भी जाओगे, कुछ प्रोडक्ट नहीं भी बनाओगे, तो भी आपको लोगों को देख देख के सीखने को मिलेगा कि लोग कैसे टीम बिल्ड करते हैं। नए नए लोग आए एक जगह पे और इकट्ठे होकर बना रहे हैं। मैं ऐसे हैकेथन्स वगैरह में ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी चीजों में जाता रहा, इवेंट्स में भी गया और यूट्यूब पे कंटेंट भी बनाया, ट्विटर प्रोफाइल भी एक्टिव की, सो लिंक्डइन। सो व्हाई आई एम मेंशनिंग सो मच स्टफ राइट नाउ इज जस्ट बिकॉज आई डोंट नो द एग्जैक्ट सोर्स why Grow reached out to me. They reached out to me over mail that we would love to interview you if you would like to do an internship at Grow. So उनका इंटरव्यू का कॉल का मेरे पे मेल आया that they said आप अपना एक बार फाइनल रिज्यूमे भेज दीजिए अपडेटेड एंड आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दीजिए so we can contact you over call. How did they get their profile? वो अभी भी डाउटफुल है. So I believe there was a hackathon in which I participated and Grow was one of the sponsors or organizers. But the tricky part here is that I didn't win that hackathon. Neither we like in the top 3. So we clearly lost the hackathon. Like we were a team of 3 and we built the product, but we did not make it to the finals. But that is one I believe, but I don't know. So ultimately the thing was कि यार अगर आप अपनी प्रोफाइल्स मेंटेन रखें, अगर आप जेन्युइनली कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कंपनीज आपको ढूंढ लेंगी. So you don't have to be a job seeker every single time. You have to become a better developer, a better engineer. कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम है उनका काम है कि यार अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढना. जैसे गूगल अपना कुछ यूज करती है, कुछ कंपनीज अलग यूज कर रही हैं, कुछ गिटहब के थ्रू आपकी प्रोफाइल्स को देख रही होती हैं, कुछ यूज करते हैं लिंक्डइन रिक्रूटर. लिंक्डइन रिक्रूटर एक अलग से एप्लीकेशन है लिंक्डइन की जो रिक्रूटर्स यूज करते हैं और उस पे से लिंक्डइन प्रोफाइल्स को फिल्टर्स करते हैं जो उनको जिस हिसाब से प्रोफाइल चाहिए होती हैं. रिक्रूटर्स के अपने काम है, हमें उन्हें छोड़ देना कि यार जिस तरीके से वो ढूंढ रहे हैं आवर वर्क इज टू डेवलप आवर स्किल्स. अगर आपको इस साइड जाना है तो इस टाइप की स्किल्स डेवलप करो, ये करना है तो वाली. मतलब कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांटेड टू डू, बट अच्छे से करो जो भी चीज कर रहे हो. कंपनीज आपको अल्टीमेटली ढूंढ लेंगी. ये वाला सिनेरियो. बिल्कुल. एक्चुअली में आई बिलीव इन दिस स्टेटमेंट दैट डोंट फाइंड बी फाउंड. तो अगर आप अपना काम इतना अच्छा करोगे, मेरी मम्मी कहती है हाथ में हुनर होना चाहिए. सो इफ यू आर स्किल्ड पर्सन देन द कंपनीज आर गोइंग टू फाइंड यू, बट इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम दैट यू आर विजिबल टू दोज पीपल. सो विजिबिलिटी आप अपनी बढ़ा सकते हो. जैसा मुकुल भैया बता रहे हैं आप ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस करो. मैंने पूरा ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इनको देख के किया, इन्होंने जीसॉक वगैरह पे काम किया और किया, तो आई गेट टू नो कि अच्छा इस तरीके से कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं. दोज थिंग्स आर अ प्रूफ ऑफ वर्क विच यू कैन शो इन द लेटर इंटरव्यू प्रोसेस. व्हेन आई एम गोइंग टू tell how that helped me in the interview process as well. Okay. So yeah, moving onwards to the next question. हमने देख लिया कि यार कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी काम पे करती है. Let's talk about what was the interviewing process. Like how was your experience interviewing at Grow? Basically, what kind of rounds were there? वो rounds DSA पे based थे, completely competitive coding पर थे या कुछ language specific थे, या किस टाइप के राउंड्स थे इंटर्नशिप के लिए आपके? इंटर्नशिप क्योंकि मैं एक स्टार्टअप में कर रहा हूँ, लाइक ग्रो बड़ी कंपनी है बट इट्स आल्सो स्टार्टअप एट द सेम टाइम. टेक्निकली
अगर आप देखो तो what things matters to them is that they hire a person who are skilled at what the work they want to give them. उनको ज़्यादा ट्रेन ना करने की जरूरत पड़े. Moreover, interview process was inclined towards building. That is like React Native role के लिए मैं जा रहा हूँ तो React Native role के लिए ही मेरा पूरा interview process inclined था. At the very first, I was asked to build a mobile application. So like I didn't count it as an assignment as well because it was pretty simple. Like you have a board and you just have to flip a few cards. एक simple सा card game बनाना था with not much of the features they want or not much of the fancy UI, just the functionality to just see कि आपको React Native का कुछ तो पता है, you can at least create a demo project. After that, once I submitted, so my interview process ended in like just 4 or 5 days max from the very start to getting an offer. Once I submitted that and by the call, like I was very much connected to the HR. मैंने HR को submit किया, थोड़ी देर बाद call किया कि submit कर दिया है, अब आगे क्या करना है बताओ. They were very helpful. After that, they scheduled a call for the first round of interview and that was on data structures and algorithm. 1 घंटे का इंटरव्यू राउंड था, उसमें इंटरव्यूअर आई, उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह लिया एंड उसके बाद में उन्होंने देख लिया बैकग्राउंड, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ लिया, सब पूछ लिया एंड देन दे मूव्ड ऑन टू द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सेक्शन. वहाँ पे उन्होंने मेरे को क्वेश्चंस पूछे. आई वाज नर्वस बिकॉज आई एम नॉट रियली गुड एट दीज थिंग्स. इवन लाइक सीपी में तो आई ट्राइड एंड लाइक मैंने छोड़ दिया, हाथ में पानी लेके छोड़ दिया कि सीपी नहीं करना है जिंदगी में. इंटरव्यू प्रोसेस में उन्होंने बाइनरीज ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने बेसिक जो डेटा स्ट्रक्चर से एक एरे सॉर्टिंग का क्वेश्चन पूछा कि आप हाउ डू यू सॉर्ट एन एरे यूजिंग बाइनरी सर्च एंड बाइनरी ट्री. सो ये 2 क्वेश्चंस उन्होंने इंटरव्यू में पूछे एंड आई वॉज लकी इनफ कि मैं एक क्वेश्चन को फुल सॉल्व कर दिया था. बाइनरी ट्री वाला लेफ्ट व्यू राइट व्यू पूछा था. जो सर्च वाला था उसका मैंने मैक्सिमम अप्रोच लिख दिया था एंड सारा जो इंटरव्यू का कोडिंग वाला पार्ट था दैट वाज ऑन अ गूगल डॉक. वो रन करके नहीं देख रहे थे. दे वर ट्राइंग टू सी हाउ डू यू थिंक एंड हाउ डू यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम. आफ्टर दैट सरप्राइजिंगली बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव हर्ड दैट इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर आपसे डीएसए ही पूछते हैं, but they asked me a puzzle question. But at the same time, all the blessings and love came at the place because the puzzle question was something which I have already done and like was a very easy one. Like if you have a 5-liter mug and a 9-liter mug, and then how do you calculate 4-liter and 9-liter? Then how do you calculate 1 to 5? So वो करते करते तो बाल सफेद हो गए थे. तो ये चीज तो हो गई थी आसानी से. But at the same time, you have to be very consciously कि आपको इंटरव्यूअर को नहीं बताना है कि मेरे को आता है या मैं कर चुका हूँ. I tried and showed him how I did into every 1, 2, 3 and ऐसा करके सब पे कैसे लेके गया डॉक्टर थ्रू ये प्रोसेस है. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी इफ आई वांट टू आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस. तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिस्कशन एक्सटेंड कर दिया बिकॉज आई वाज क्यूरियस बिकॉज आई वर्कड एट स्मॉल स्टार्टअप्स बट आई वांटेड टू नो कि बड़े स्टार्टअप्स में कैसे काम, सो दैट आई कैन सेट माय एक्सपेक्टेशंस एट द सेम टाइम. तो उन्होंने अपने वर्क कल्चर के बारे में बताया, हाउ शी वाज वर्किंग ऑन सम अदर टेक एंड देन शी माइग्रेटेड टू अ न्यू टेक व्हिच इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट. तो काफी इंटरेस्टिंग रहा वो कन्वर्सेशन भी. सो दैट वाज द फर्स्ट राउंड. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड. कैसा है नेक्स्ट राउंड में, क्या हुआ? वो भी डीएसए से रिलेटेड था या फिर क्या सारी चीजें थी? After the interview, first round of interview ended within 10-15 minutes because I saw on the email description कि they will going to submit the feedback right after the interview. So I immediately after 30 minutes I called the HR that what now, how was the interview and like stuff. So she was good enough that she told me that your interview was well, so they are going to soon schedule my next interview. So I immediately like follow up करते रहना बार कि क्या चल रहा है, so that you are in that cycle. मेरे को पता चल गया my next interview would be there and it would be scheduled soon, but वो interview DSA पे based नहीं होगा. That would be clearly on React Native app development. सो ग्लासडोर करके वेबसाइट है, पूरी दुनिया को पता है. मैंने उस वेबसाइट पे गया, मैंने चेक किया कि क्या रहता है इंटरव्यू प्रोसेस. सो ये चीज़ ऑलरेडी आई वॉज प्रिपेयर्ड दो, बट फिर भी मैंने चेक किया फिर से कि क्या था. तो ऑन दैट वेबसाइट इट वॉज क्लियरली मेंशन्ड कि आपको इस इंटरव्यू में जो कुछ टूल्स होते हैं वेबसाइट्स है जिन पे स्टैक ब्लिट्स वगैरह करके आप अपना रिएक्ट नेटिव ऐप क्लाउड पे रन कर सकते हो. सो दे वर गोइंग टू टेस्ट यू वाइल कोडिंग. वो पूरा कोडिंग वाला पार्ट रहने वाला था. सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड मैंने सब अपना सेटअप वेटअप प्रिपेयर कर लिया था, पूरा रिएक्ट नेटिव रिवाइज करके आया था सब चीज़ें. उस टाइम पे उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया. इंट्रोडक्शन में मैंने अपने ओपन सोर्स के बारे में बताया, थैंक्स टू मुकुल भैया अगेन कि इस चीज़ में काम किया. ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते बताते दैट पर्सन वाज लाइक दैट वर्कड एज अ प्रूफ ऑफ वर्क फॉर मी एंड दे डिडंट इवन आस्क मी टू ओपन एनी वेबसाइट. और उन्होंने वो लिंक भी कुछ यूज़ नहीं किया. मेरे को कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसे टेस्ट करे या कुछ कोड करवाए. सो दैट वाज अ नो कोड इंटरव्यू फॉर मी. आई एम नॉट श्योर कि कैसा रहता है, बट फॉर मी इट वॉज अ नो कोड इंटरव्यू. उन्होंने बस मेरे से जैसे वो होता है ज्ञान वार्तालाप करके डिस्कस किया कि अच्छा तुमने वो चीज़ यूज़ की है, सर्विसेज यूज़ किया है एंड्रॉइड में. मैंने कहा हाँ ऐसे किया है, मेरे को रिएक्ट नेटिव का इतना आइडिया है, आप रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी में कितना एक्टिव हो, कितना आपने देखा वगैरह. सो कम्प्लीटली दैट इंटरव्यू वॉज ऑन दैट पेस की बस डिस्कशंस हो रहा है. सो काफ़ी मज़ा आया मेरे को उस इंटरव्यू में जेन्युइनली. एंड दैट पर्सन वॉज रियली अमेजिंग. उनको काफ़ी डीप में नॉलेज थी. उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी तो आई क्लियरली बीन वेरी ऑनेस्ट. आई सेड लाइक मेरे को इसका आइडिया नहीं है. मैं फ्लटर पे कर गया क्योंकि मेरे को रिएक्ट नेटिव ज़्यादा पसंद नहीं है.
Being very honest was the good thing which I had in that interview, and that I'm not saying because I feel so, but at the end of the interview I asked him for my feedback, and he said like it's good that the age at which you are and the knowledge you have, so it's a good thing, but let's see what happens and the HR will contact you. Again, rather than the HR contacting me, I contacted the HR that what's now. तो मतलब HR को उनका, मेरे को पता है उनका यही काम है, तो क्यों ना यूज़ कर लें अच्छे से, उनकी हेल्प ले लें कि क्या है क्या नहीं है प्रोसेस में. देन द HR कि अब ऐसा आज का दिन ओवर हो चुका है, 5 बज चुके हैं, मैं घर पे हूँ, आपको कल बताते हैं देख के. डे आफ्टर टुमारो मेरे को मेल आया कि आपका लास्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है, दैट वुड बी मैनेजरियल राउंड ऑफ इंटरव्यू. इसमें एक सीनियर पर्सन जो कि मोबाइल आर्किटेक्ट थे कंपनी में, वो आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, एंड दैट इंटरव्यू वाज मोर फोकस्ड ऑन माय रिज्यूमे एंड माय पर्सनल स्किल्स की why you want to work with us, why not Flipkart, why you want to work in a fintech company. अब इन चीज़ों में because I've been teaching on YouTube, so like it's just about connecting the dots. इन चीज़ों में I was very prepared to answer everything, like I don't need to get prepared for those. उन्होंने मेरे से पूछा कि आप फ्लिपकार्ट में क्यों नहीं काम करना, मतलब फ्लिपकार्ट नाम नहीं लिया, बट why you don't want to work on e-commerce websites or those things rather than fintech. मैंने कहा कि देखो टेक्नोलॉजी से तो मेरे को प्यार है, दूसरा मैं राजस्थान से हूँ, मारवाड़ी आदमी हूँ, तो फाइनेंस से तो होगा ही. So that's so मैंने काफ़ी like chill mode पे कर दिया था इंटरव्यू, and that interviewer was also laughing and he also enjoyed that time, I feel so. Luckily he was also from the same state, but इसका कोई ऐसे ज़्यादा फायदा नहीं, but it was clear that he was happy with the interview, and then he moved on to asking one question, and the question was literally nothing about कि कितना मैं solve कर सकता हूँ. It was just about the way I write code, कि आप कोड कितने अच्छे से क्वालिटी कोड लिख सकते हो, बिकॉज फॉर अ बिग कंपनी व्हाट मैटर्स कि आप कोड ऐसा लिखो कि आपके जाने के बाद में अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय आए तो वो पढ़ सके. इस चीज़ में अगेन ओपन सोर्स एंड द वर्क आई हैव बीन डूइंग हेल्प अ लॉट. So I was very confident writing the code. I've added proper comments. I've been following all the linter things and formatting, variables का नाम अच्छे से रखना, constants declare, कब constant कब var declare करना है. So it was pretty clear and the interviewer was happy in that case as well. ये चीज़ भी बहुत ही अच्छे से चला गया. And at the end, interviewer was saying that if you have any questions to ask me, then I again like just extended the interview asking what the mobile architect role is, because I didn't have any idea of it. So he explained me about those stuffs, and it's really good. The fun fact here is that now I'm working with all these 3 people who interviewed me. These 3 people were from the same app team, so that is something you get to do if you do work in a startup. So you will be able to more connect with the people, because I'm not sure about how big companies like for example MNCs में उनमें क्या होता है, but startups में आप जिनका इंटरव्यू किया है या फिर लोगों से कनेक्ट थोड़ा सा बेटर मेरे को लगता है. हाँ. सो दैट वाज द इंटरव्यू प्रोसेस. बस 3 राउंड हुए, उसके बाद में 1-2 दिन बाद में मैंने फिर से कॉल किया इंटरव्यू HR को कि क्या हुआ. सो उन्होंने कहा बताएंगे धीरज रखो. थोड़े दिन बाद लाइक 1-2 दिन बाद आ गया मेल कि आपको सेलेक्ट कर लिया. उनका कॉल आया, मेल भी नहीं आया इस बार उन्होंने, क्योंकि वो इंटरव्यूअर भी HR भी इतनी परेशान हो गई, उसने कहा कॉल करके बता देते हैं इसको कि आपको सेलेक्ट कर लिया है, आपका ये सब प्रोसेस अब आगे चालू होगा. आई वॉज सरप्राइज कि उन्होंने इमीडिएट ज्वाइनिंग का बोल दिया था कि दैट आप अभी सैटरडे को कॉल आया, बोला मंडे से ज्वाइन कर लो. मैं कहा यार ऐसे थोड़ी होता है कि अभी अगले हफ्ते से आ जाना नौकरी पे. कि क्या था, मेरे को बहुत ही वो कन्फ्यूजिंग लगा था थोड़ा सा, बट बाद में पता चला नहीं, उनको एक्चुअल में ज़रूरत थी अच्छे डेवलपर्स वगैरह की. ठीक है. ओके, दैट्स नाइस. मुझे एक चीज़ काफ़ी पसंद आई यहाँ पर कि यार आपने है ना हर टाइम पर एक्टिवली पार्टिसिपेट किया प्रोसेस के अंदर, फॉलो अप्स करते रहे जहाँ भी नीड थी. क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा यार, इनफैक्ट मैं एक पर्सन का मैसेज बताता हूँ, उन्होंने कंपनी में अप्लाई किया और उन्होंने बोला कि यार 1 महीने तक मेरे पास कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर 1 महीने बाद मेरा सेकेंड राउंड शेड्यूल हुआ. एंड आई वाज लाइक कि यार चलो 1 महीने तक आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, वो तो चलो ठीक है, वो चीज़ें चलती रहती हैं, जब इंटरव्यू प्रोसेसेस चलती रहती हैं बहुत सारी, तो कभी कभार कुछ मिसेस हो जाते हैं. लेकिन आपको 3 दिन बाद या फिर एटलीस्ट 1 हफ्ता तो मुझे प्रॉपर लगता है कि यार कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन है, फर्स्ट राउंड हो फाइनल राउंड हो कुछ भी हो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमें फॉलो अप ईमेल या फिर कॉल कर ही लेनी चाहिए. वो मुझे काफी लगता है वो अभी भी मिस करते हैं, हेजिटेट करते हैं, घबराते हैं. यार अल्टीमेटली HR का काम यही है कि यार वो आपको हेल्प करें. उनका काम ऐसा नहीं है कि वो आपके इंटरव्यू लेने बैठ जाएंगे, उनका काम है आपको कम्युनिकेट करना, आपके लिए सही राउंड शेड्यूल करना, एग्जैक्टली इन्फॉर्म करना. एंड वो बुरा भी नहीं मानते हैं. सो इफ यू आर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड वेरी नाइस, तो दे फील दैट कि हाँ दिस पर्सन इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस होल प्रोसेस. इसका मैंने फॉलो अप क्यों किया, क्योंकि आई वाज वेरी क्लियर कि फॉलो अप करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है. इवन लाइक जो ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल, ही फॉलो अप 30 टाइम्स फॉर एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन हिज कंपनी. सो आप तो क्या हो उनके सामने, यू शुड एटलीस्ट फॉलो अप एंड डोंट हेजिटेट इन दिस पार्ट.
Yeah, moving onwards to the last question of this video. तुषार, Yeah. आपने काफी डेवलपमेंट की है, आपने काफी जगह पर हाथ मारा है, उसके बाद आप एक अच्छी रिस्पेक्टफुल कंपनी में अच्छा काम कर रहे हैं। आपके क्या सजेशंस होंगे आपके जूनियर इंजीनियर्स के लिए जो कि अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आगे इंजीनियर्स बनेंगे, या फिर जो कोई भी टेक साइड पर आना चाहते हैं, या जनरल लाइफ लेसन्स जो आपने सीखे, आपने नहीं चाहते कि यार सामने वाला पर्सन सेम गलती करे? मोस्टली तो लाइक आप इस चैनल पे थोड़े टाइम से फॉलो कर ही रहे हो, तो आपको वो सारी लेसन्स मोस्टली मिल जाएंगे ऑलरेडी। एक दो चीज़ें जो मैंने वीडियो मिस कर दी उसमें कवर्ड अप नहीं हुई हो, तो वो ऐसी हो सकती है कि एक तो लाइक पर्सनैलिटी वाइज आई थिंक यू हैव टू बी वेरी विन अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड वेरी हम्बल। तो अगर आप नहीं भी हो तो भी मीठा तो बोलना ही चाहिए व्यक्ति को। उसके अलावा जो टेक्निकल साइड ऑफ द थिंग्स है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल आर वेरी मच अबाउट करियर, इंटर्नशिप्स, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं हु आर इवन बेटर देन मी, मे बी दे डोंट हैव द इंटर्नशिप राइट नाउ, बट इफ दे हैव द स्किल्स आई एम प्रीटी श्योर कि मेरी जॉब लगे नहीं लगे उनकी लग जाएगी, मुझे पीपीओ मिले नहीं मिले उनको फुल टाइम ऑफर आ जाएगा। जस्ट हैव टू डू वॉट यू लव। फॉर एग्जाम्पल आपको जो टेक सीखने का मन कर रहा है कि किस में काम है, किस में अपॉर्चुनिटीज आ रहा है, उन सब चीज़ का थोड़ा फर्क पड़ता है, बट एट द सेम टाइम आप ऐसा देखिए कि आपको उस टेक में भरोसा है, सो यू शुड परस्यू इट एनी वे। सो देर आर करियर ऑप्शंस इन ऑल द टेक। जब मैंने स्टार्ट किया सब कोडिंग वगैरह करना, सो व्हेन आई वेंट टू द कॉलेज, तो एक चीज़ का मुझे बहुत फीडबैक मिला। सो लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है, कैसे हैंडल करना है, उसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरे को अपना रिज्यूमे में अगर दिखाऊँ ना, तो वो ऐसा था, सतरंगी रिज्यूमे था। उसके अंदर फ्लटर भी था, रिएक्ट नेटिव भी था, एंड्रॉइड भी था, ये भी था, वो भी था, ऐप डेवलपमेंट भी था। इनफैक्ट मैं तो अब क्वांटम कंप्यूटिंग भी सीखा हूँ, वो भी मैंने रिज्यूमे में डालने में कर दिया। प्रॉब्लम मेरे को लोगों ने फीडबैक बोला कि यार तू क्या कर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है ये सारी चीज़ें पे क्यों हाथ पैर मार रहा है, एक चीज़ पे फोकस कर, उसमें सीख। बट आई वॉज क्लियर कि यार मेरा ऐसा है ही नहीं कि मेरे को एक चीज़ पे स्टिक करके रखना है, वरना इट वुड बी स्टैग्नेंट फॉर मी। सो इट्स जस्ट माई प्रेफरेंस, बट यू हैव टू एनालाइज एज अ पर्सन कि उनका जो क्रिटिसिज्म था या फीडबैक था, हाउ यू कैन मोल्ड इट। सो मेरे को ये चीज़ बहुत ही मेक सेंस वाली लगी कि यार ये बात तो सही बोल रहा है कि अगर इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है तो जो HR फर्स्ट टाइम पे पढ़ेगा उसको भी यही लगेगा। व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड सेपरेट रिज्यूमेज। रिएक्ट नेटिव का अलग रिज्यूमे, उसमें सारे प्रोजेक्ट्स रिएक्ट नेटिव, मेरे पे 4-5 प्रोजेक्ट्स थे वो रिएक्ट नेटिव के बना लिए। फ्लटर का अलग रिज्यूमे। अब जहाँ पे मेरे को अप्लाई करना है जिस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो यू हैव टू रिसर्च अबाउट दैट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ग्रो को जब मैंने अपना रिज्यूमे भेजा, मेरे को पता है कि वो रिएक्ट नेटिव रोल के लिए, तो उसमें फ्लटर का नाम निशान नहीं था। रिव्यू में मैं ज़रूर बताया अपने बारे में कि मेरे को और चीज़ों की भी नॉलेज है, बिकॉज इन दैट इंटरव्यू आई टोल्ड कि आई नो अबाउट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल एंड आई कैन फाइंड द बेस्ट टूल टू अप्लाई टू सॉल्व अ बिग प्रॉब्लम। उस तरीके से आप चलो। आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जो फीडबैक मिल रहा है, उसको अपने दिमाग में प्रोसेस करो, और जो HR के परस्पेक्टिव से या जो इस कंपनी में आप जाना चाह रहे हो, उस कंपनी के टारगेटेड रिज्यूमे बनाओ। कंपनी को क्या चाहिए, अगर वो आपके पास होगा तो कंपनी क्यों नहीं हायर करेगी आपको। एंड ओपन सोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच हैपन्स टू माई लाइफ। आई एम स्टिल कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड आई एम इवन गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट फर्दर इन दिस ईयर। सो दैट इज वन थिंग विच आई लव टू डू मोस्ट। That's nice, that's a lot of things in last। मुझे पर्सनली जब भी मैं किसी का कन्वर्सेशन करता हूँ, ठीक है इंटरव्यू प्रोसेस हो गई है, जो फेजेस थे वो वाली हो गई है, कैसे अप्रोच किया, लेकिन ये वाला फेज जो होता है ना लास्ट वाला, जब लोग अपने सजेशंस देते हैं, यहाँ पर मुझे पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये वाला इसीलिए मैं हर वीडियो में ये वाला पार्ट में ऐड करता हूँ कि यार ठीक है किसी पर्सन के साथ बैठ के बात की जा रही है, तो मुझे भी कुछ अल्टीमेटली कुछ ऐसा ज़बरदस्त सीखने को मिलता है जो कि मैं आगे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना प्रेफर करता हूँ। जैसे रिज्यूमे वाली बात बहुत अच्छी कही थी, यार अलग अलग रिज्यूमे बना दो। अल्टीमेटली आपको चीजें आती हैं, ठीक है, दैट यू कैन टॉक अबाउट इन योर इंटरव्यूज, बट योर रिज्यूमे शुड बी जॉब फोकस। आप डेटा साइंस की जॉब अप्लाई कर रहे हो, वहां पर अगर आप डाल दोगे कि यार मुझे वेब डेवलपमेंट में ये है, या मेरी कुछ स्पेसिफिक ये चीज है, या प्ले स्टोर पर मैंने इतनी ऐप्स पब्लिश की हुई है, वो बहुत बढ़िया रिज्यूमे है, लेकिन जिस प्रोफाइल के लिए वो आपको इग्नोर कर देगा, क्योंकि यार वहां पर उसे ये चीजें नहीं चाहिए। आप एक अच्छे डेवलपर हो, अच्छे इंजीनियर हो, लेकिन वहां पर आप फिट नहीं बैठ रहे हो इस वजह से। तो यार या दैट वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स। पॉडकास्ट हो गया। थैंक यू सो मच तुषार फॉर योर टाइम। हम आज फिर से रात में एक और वीडियो बना रहे हैं। कुछ सिखाओ यार, इतनी वीडियोस कैसे बना लेते हो आप कंटिन्यूअसली, लाइक दिस कंसिस्टेंसी इज अमेजिंग। सो मेरे को इतना मेरे से भी नहीं हो पाता यार, सही में अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस चैनल। Yeah, thank you so much. Thank you so much everyone for watching. If you haven't heard about Newton School till now, go check them out. They have some really great courses. Pay after placement is one of my favorite. मतलब मैं काफ़ी वीडियोस में इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी भी
वे आफ्टर प्लेसमेंट को चेकआउट नहीं किया है, जाके देखिए वहां पर क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं, फीचर्स हैं, आप किसी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप जाइए वहां पर सीखिए और आपको जॉब मिले। और जब तक आप सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज दे रहे हैं, आपको कोई पैसे पे नहीं करने हैं। इफ यू हैवंट चेक्ड आउट न्यूटन स्कूल, गो चेक देम आउट एंड या हैव अ नाइस डे। बाय। बाय एवरीवन।